Hello students, today we will study chapter 8 Introduction to Trigonometry. So let us start. First we will discuss what is trigonometry. It is a branch of mathematics that deals with the triangle, mostly with right triangles used in finding relationship between side and angles. So trigonometry is a branch of mathematics वो deal करती है with triangles, mostly with right triangles and is used in finding relationship between the side and the angles. So in the word trigonometry, tri means 3, gono means sides and metry means measurement. In Greek, these are all the meaning of these words. So let us start with our topic trigonometric ratios of the angles. Ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angle is called trigonometric ratios of the angle. तो right triangle की sides की ratio with respect to acute angle is called trigonometric ratios. So let us start. Origin and purpose of trigonometry is given to you. Name, place, year and need. Next is application in real life. In ancient time it was used for astronomy, in finding distance of stars, finding radius of earth, finding height of hills, building trees, navigation, airplane, ships, defense. So these are applications of trigonometry in real life. This is a brief introduction about trigonometry. So let us begin with our main topic, that is trigonometric functions. So there are three basic trigonometric functions. First function is sine function. In short form we write it as sin sine. Second is cosine function. In short form we write it as cos cos. Third is tangent function. In short form we write as tan tan. So let us begin with the terminology. First is hypotenuse. You all know what is hypotenuse in a right angle triangle. It is the longest side. The hypotenuse of a right triangle is always the side opposite to the right angle. तो right angle के opposite जो side होती है वो हमारी hypotenuse होती है and it is the longest side in a right triangle. Next is opposite side. Opposite side is always across the given angle. So in this triangle BCA, angle C is right angle and B and A are these two are acute angles. So if you want to find side opposite to angle A, then BC is the side opposite to angle A. जो side इसके opposite है वो इसकी opposite side हो जाएगी, ऐसी B की opposite side हो जाएगी AC. Next is adjacent side. आपको एंगल ए के एडजेसेंट साइड बोला है तो उसके साथ जो साइड है ए बी वो हमारी एडजेसेंट हो जाएगी. सी के एडजेसेंट पूछेंगे तो बी सी एडजेसेंट हो जाएगी और ए सी हमारी हाइपोटेनस है. नेक्स्ट इज साइन फंक्शन SIN. साइन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल टू द हाइपोटेनस. तो अगर आपको साइन फंक्शन निकालना है, आपको ये राइट ट्रायंगल गिवन है, इसको नेम दे देते हैं ABC. इसमें आपको थीटा ये एंगल गिवन है, आपको साइन थीटा निकालना है. तो साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट ओवर हाइपोटेनस. तो थीटा के अपोजिट साइड जो है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे हाइपोटेनस. इसको अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें तो आपका ये AC हाइपोटेनस है और जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है. थीटा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई और थीटा जिस पर है वो हमारा बेस हो गया. तो साइन थीटा हो जाएगा आपका इस टर्म में P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. नेक्स्ट देखेंगे कोसाइन फंक्शन COS. कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट टाइम्स टू द हाइपोटेनस. तो कोसाइन फंक्शन होता है हमारा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस. साइन थीटा दिया हुआ है आपको, एडजेसेंट साइड है वो ऊपर लिखेंगे और हाइपोटेनस नीचे लिखेंगे. इसको भी अगर हम P, B और H की फॉर्म में लिखें तो हाइपोटेनस H होता है, थीटा के अपोजिट जो साइड है वो B है और एडजेसेंट साइड हमारी B बेस होता है. तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस. नेक्स्ट है टेंजेंट फंक्शन, दैट इज tan थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड. टेंजेंट इज अपोजिट ओवर एडजेसेंट. ये सब आपको लर्न करना है कि कौन अपोजिट ओवर हाइपोटेनस है, कौन सा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस है और कौन सा अपोजिट ओवर एडजेसेंट है. तो tan थीटा हो जाएगा आपका अपोजिट बाय एडजेसेंट. tan थीटा के अपोजिट साइड ऊपर लिखेंगे और एडजेसेंट साइड को नीचे लिखेंगे. इसको अगर आप P, H और B की फॉर्म में लिखे तो ये आपका H है, ये P है और ये B है. तो tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इन तीनों को आपको अच्छे से लर्न करना है कि ये क्या है. नेक्स्ट है राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ एंगल A. तो आपको ये राइट ट्रायंगल गिवन है, आपको इसमें लेंथ गिवन है, AC आपको गिवन है B, BC आपको गिवन है A और C आपको AB गिवन है. तो अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में आप देखें तो एंगल A की अपोजिट साइड है BC, A जिसकी लेंथ है, जो AC है आपकी
वो उसकी एडजेसेंट साइड है, उसकी लेंथ b गिवन है आपको, और हाइपोटेनस c है, उसकी लेंथ आपको c गिवन है। तो आपको साइन, कोसाइन और टेंजेंट की एक्सप्रेशंस लिखनी है। साइन थीटा अभी हमने पढ़ा था, ये होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो साइन एंगल a हो जाएगा a/c एट अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट आपका ऐसी कोसाइन थीटा हमने पढ़ा था, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट है आपकी b और हाइपोटेनस है आपकी c, तो ये हो जाएगा b/c। सिमिलरली टेंजेंट आपने पढ़ा था, अपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट है a और एडजेसेंट है b, तो टेन थीटा हो जाएगा a/b। नाउ वी विल स्टडी रेसिप्रोकल फंक्शंस। अभी जो हमने 3 फंक्शंस पढ़े हैं, साइन, कॉस एंड टेन, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं, वो भी तीनों फंक्शंस हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कोसिकेंड और कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन ए जो है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हमारा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस टू द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। तो साइन ए होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक ए जो है हमारा वो होता है हाइपोटेनस बाय अपोजिट। नेक्स्ट है हमारा सीकेंड और सेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का। इट इज़ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस टू द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड। हमारा कॉस ए होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सेकेंड ए जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेकेंड ए हमारा है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। सिमिलरली लास्ट फंक्शन, सिक्स फंक्शन है कोटेंजेंट और कॉट थीटा। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एडजेसेंट टू द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। तो कॉटे टेन ए का अपोजिट होता है, कॉटे होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सीकेंड ए, कॉसिकेंड ए एंड कोटेंजेंट ए ऑफ एंगल ए। तो जैसे अभी हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ लिखी थी, इस तरीके से हम सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा की भी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो आपको ये राइट ट्रायंगल गिवन है बी सी ए, सी पे राइट एंगल है, आपको बी सी गिवन है ए सी गिवन है बी और ए बी गिवन है आपको सी। तो सीकेंड थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस ओवर एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस है इधर सी और एडजेसेंट है बी, तो सेकेंड थीटा हो जाएगा c/b। कोसेकेंड थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस ओवर अपोजिट, हाइपोटेनस से c और अपोजिट साइड है a, तो ये हो जाएगा c/a। ऐसी कोटेंजेंट थीटा हमारा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस होता है, तो कॉटे हो जाएगा हमारा b/a। तो ये 6 के 6 फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको लर्न करना है कि कहाँ पे अपोजिट आएगा, कहाँ पे हाइपोटेनस आएगा। नाउ लेट डिस्कस एक्सरसाइज 8.1। Question number 1. In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sine of angle A and cos of angle A. Second part, determine sine of C and cos of C. तो सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल हमने दिखा दिया है यहाँ पर B पर, बिकॉज B पर गिवन था, जो मेजरमेंट गिवन है वो हमने लिख दी, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें जो ए सी नहीं गिवन है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो ए सी स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए बी की 24 गिवन है, 24 स्क्वायर प्लस ए सी 7 स्क्वायर। तो फाइंड आउट करेंगे इनका स्क्वायर, तो आ जाएगा ये 576 प्लस 49, ऐड करेंगे तो आएगा 625। तो ए सी स्क्वायर आ गया आपका 625, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका ए सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन ए। तो सबसे पहले आपको ए एंगल को कंसिडर करना है, इसके जो अपोजिट साइड है वो है 7 और जो एडजेसेंट साइड है वो है 24। वही निकालेंगे, साइन ए होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो साइन ए अपोजिट साइड लिखेंगे बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, तो बी सी की वैल्यू पुट करेंगे 7, ए सी है 25, तो साइन ए आ गया आपका 7/25। सिमिलरली हम कॉस ए फाइंड आउट करेंगे, कॉस ए होता है आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में साइन सी निकालना है। अब साइन एंगल सी ए है तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी और एडजेसेंट साइड हो जाएगी इसकी बी सी। तो साइन सी लिखेंगे हम
पहला होता है आपका ये अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट है इसमें ए बी, हाइपोटेनस है ए सी, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 24/25। ऐसे ही कॉसी निकालेंगे, कॉसी होता है आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है एंगल सी के बी सी साइड और हाइपोटेनस है ए सी, वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा 7/25। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जब भी आपको ऐसे टिरो के क्वेश्चंस गिवन होंगे। नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। तो आप इसको इधर सी ले लीजिए, इधर ए ले लीजिए, बिकॉज ए एंगल आपसे पूछा है, ये राइट एंगल हमने बी पर लेट कर लिया। तो आप देखेंगे साइन है आपको गिवन है 3/4, साइन सबको पता है, साइन होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो हम इसको पहले लेट करेंगे, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k/4k वेयर k इज रियल नंबर, बिकॉज ये रेशियो में गिवन है इसलिए हम इसको 3k/4k लेट करेंगे। तो आपका ये साइन ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो 3k हमारी हो जाएगी अपोजिट साइड की लेंथ। तो ये a है, इसके अपोजिट साइड है BC, तो 3k BC हो जाएगी इक्वल्स टू 3k, और 4k आपका ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस AC है, तो ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। तो आपको सबसे पहले AB हमारे पास नहीं है तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² आपको 4k गिवन है, तो 4k का स्क्वायर लिखेंगे, AB² हमें फाइंड आउट करना है और BC² है 3k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 16k² इज इक्वल टू AB² प्लस 9k²। AB² को अपनी प्लेस पर रहने देंगे, 9k² को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा ये आपका 7k²। स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू √7k। तो ये भी आ गया आपका √7k। अब आपको इसमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस पता है हमें होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ए के एडजेसेंट है AB और हाइपोटेनस है AC। तो AB की वैल्यू पुट करेंगे √7k/AC दैट इज 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा √7/4। ऐसे ही tan ए निकालेंगे, tan ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट है BC, tan ए होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है BC और एडजेसेंट है AB के 3k/√7k। k से k कैंसिल, बच जाएगा 3/√7। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। Question number 6. If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. आपको तो acute angles गिवन है A और B, जैसे कि cos A और cos B इक्वल हो, आपको शो करना है कि A और B इक्वल है। तो दो राइट ट्रायंगल कंसिडर करिए, इसको एंगल A मान लीजिए और इसको एंगल B, इनको आपको इक्वल प्रूफ करना है। इसको नेम दीजिए PQ, इसको CD। तो ये आपके दो राइट ट्रायंगल्स हो गए। आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos आपको पता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है, तो cos A हो जाएगा AP/AQ। सिमिलरली cos B हो जाएगा BC/BD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा AB/BC इज इक्वल टू AQ/BD। ये आपकी बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट आप इसको लेट कर लेंगे k, लेट AP/BC इज इक्वल टू AQ/BD इज इक्वल टू k। इसको एक फिक्स नंबर हमने लेट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 बना दी। तो अब AP हो जाएगा k टाइम्स ऑफ BC और AQ हो जाएगा k टाइम्स ऑफ BD, बिकॉज ये दोनों k के इक्वल हैं। लिखते हैं इसको, AP इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ BC एंड AQ इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ BD। अब दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे, माइन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BCD। PQ/CD साइड की रेशियो निकालेंगे। जो PQ साइड है वो हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ AQ माइनस AP², पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। CD हो जाएगी BD² माइनस BC²। हम AQ और AP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे लिखी थी।
तो लिखेंगे इट्स के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आ जाएगा नीचे से, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, नीचे भी हमारा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पी क्यू बाई सी डी इज इक्वल टू के। इक्वेशन 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखेंगे तो आपका आएगा कि तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो सेम हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए पी बाई बी सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी डी। तो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की रेशियोज हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो सेम आ गई है। तो ये दोनों ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल बी सी डी से बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाकी के पार्ट्स हैं एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। दैट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड पार्ट पे cot स्क्वायर थीटा। तो आपको cot थीटा गिवन है 7/8। cot थीटा हमें पता है होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो हम इसको फिगर बना लेते हैं और वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इधर हम थीटा लेट करेंगे। अभी हमने जिस तरीके से कॉट साइन ए को लेट किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी तरीके से हम कॉट थीटा को भी लेट करेंगे। लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, के लगा देंगे इधर, फिर के इज़ अ रियल नंबर। बिकॉज ये हमें रेशियो में गिवन होता है, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये 7/8 कि हम इसमें परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज को 7 और 8 लेट कर लें, इसलिए हमें के लगाना पड़ेगा रियल नंबर। तो कॉट थीटा होता है हमारा एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो कॉट थीटा के एडजेसेंट साइड है हमारी, तो उसको 7 के लिखेंगे, अपोजिट साइड को 8 के लिखेंगे। ट्राइंगल को नेम दे दीजिए सी बी ए। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। बी सी स्क्वायर हमारा 8 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 64 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर, ऐड करेंगे आएगा 1113 स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1113 के। तो ए सी की वैल्यू आ गई है। हम जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट भी इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पर हम इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उससे कर लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो साइन हमें पता है होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 113/k। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे अब 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 8k बाय 113k का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 7k बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1113k होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 64k स्क्वायर, नीचे जाएगा 1113k स्क्वायर, जाएगा 1 माइनस 49k स्क्वायर 1113k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कैंसिल्स हो गए इधर। तो आपका बच जाएगा 1 माइनस 64 बाय 113 1 माइनस 49 बाय 113। इसको एलसीएम लेंगे, 1113 का एलसीएम लेंगे, 1113 माइनस 64 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1113 माइनस 49 बाय 113। तो माइनस करेंगे आ जाएगा 49 बाय 113, आ जाएगा आपका 64 बाय 113। डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा अब ये, तो आ जाएगा 1113 बाय 64, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 49 बाय 64। तो जो आपको ये फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू आई हमारी 49 बाय 64। सेकेंड पार्ट करेंगे।
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है हमारा एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो एडजेसेंट साइड है हमारी ए बी और हमारी अपोजिट साइड है बी सी। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर होगा, ए बी की वैल्यू लिख देंगे 7 के एंड बी सी की है हमारी 8 के, होल स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे 49 के स्क्वायर बाय 64 के स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा 49 बाय 64। तो हमारा अब 7 पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट थीटा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, ड्रॉ कर लेते हैं राइट ट्राइंगल। राइट एंगल क्यू पे गिवन है, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दैट इज पी आर प्लस क्यू आर। तो क्यू आर को हम एक्सप्लेट कर लेते हैं, तो जो पी आर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर लीजिए क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, बिकॉज इन दोनों का सम 25 गिवन है, तो एक एक्स है तो दूसरा 25 माइनस एक्स होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्यू आर है हमारा एक्स स्क्वायर और पी क्यू है हमारा 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब हम लिख लेंगे। 625 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 50 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 50x आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x। तो x आ जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाय 50, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12। तो हमारा क्यू आर आ गया है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर निकाल लेते। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो पी आर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब जो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो हम निकाल सकते हैं। साइन पी, साइन होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड है यहाँ पे क्यू आर, हाइपोटेनस है पी आर, तो क्यू आर बाय पी आर लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 12/13। कॉस पी होता है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है पी क्यू, हाइपोटेनस है पी आर, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 5/13। नेक्स्ट टेन पी है, टेंजेंट पी, ये होता है हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट है हमारी, ये होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है क्यू आर, एडजेसेंट है पी क्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर है 12, पी क्यू है 5, तो आ जाएगा 12/5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 5 पार्ट्स गिवन है, इसमें 2 पार्ट्स में डिस्कस करें, बाकी 3 पार्ट आपको खुद से करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको बोला है कि 10 की वैल्यू क्या हमेशा लेस होती है 1 से, तो हमें पता है 10 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो अगर अपोजिट साइड बड़ी हो जाएगी एडजेसेंट से, तो जो हमारा ये 10 है वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 10a इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इफ opposite side is greater than adjacent side, then the value of 10a is greater than 1। तो फॉल्स या ट्रू बोल रहे हैं तो उसका रीज़न भी हमें देना होगा। सेकेंड पार्ट है सेकेंड ऑफ a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज सेकेंड हमारा होता है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड। हमें पता है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो हमेशा एडजेसेंट साइड से ग्रेटर होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा
ग्रेटर देन 1 होगी तो 12/5 इसकी वैल्यू हो सकती है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो लिखेंगे इसको, एंड वी नो दैट hypotenuse is always greater than adjacent side। बाकी के 3 पार्ट्स इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ऐसी पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी।